वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई फॉरेन स्टूडेंट मस्ट स्टडी इन इंडिया। आई लेफ्ट कोरिया टू स्टडी इन इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो के कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो कोरिया छोड़कर इंडिया आए। तो देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। India will soon eat the world. कोरियन लड़का। Namaste, subscribers. It's Okay. Korean Ladka. Today, I will tell you why you have to study in India. As many of you know, I lived in India for 5 years. Ikdo, Tin, Char, Punch. So, why did I leave Korea and came to India? This is because I knew that studying in India will positively affect for my future. I will tell you 4 reasons why so many foreigner students are actually leaving their country and coming to India to study. First reason, the quality of education. In many Indian schools, great level of education is provided. This is why there are so many Indians with high education. 36% of NASA employees are Indian. Did you know that? And NASA never hires some मुझे पता था। bullshit. NASA hire only some intelligent people. Foreigners who can speak Hindi can simply join Indian local school for higher level of education system. And in case of foreigners who cannot speak Hindi like me, it is also great because top level education programs like IGCSE and IB are provided. They are widely provided all around India. Even I came to India for IB. If you want to be well educated like me, go to India. Acha, arey. Second reason, the potential of India. India will soon eat the world. India has fastest growing economy. It is like America in 30 to 40 years ago. People who knew that America will rule the world for at least for a century, they went to America to study there. And actually many successful entrepreneurs have experienced to study in America. And India will definitely become the next world leader. Studying in India will become their strong point for those who studied in India, like me. Ikdo. 10th reason. India is center of everything. India is a Bishar country, which means a big country, and have population of 1.2 billion. What? 1.2 billion. Can you believe this? I think it might be more than 1.2 billion. I'm sure that there are many people who haven't registered. I think it might be near 1.3 or 1.4 billion. Anyways, I will give you an example. My major is logistics. It's related to some import and export. And India is the center of logistics. Since India has a really huge market, each company wants to settle in India. In most of logistics companies, they have divided into each sector like Asia, Europe, Africa, and like this. And there is India. India, the one country itself is a sector. This shows how important India for logistics. And even in global market, India has a strong buy power. And since long ago, my dream was working in logistics industry, and this was the main reason why I came to India to study. India is the heart of logistics. I'm sure that my experience in India will definitely help me a lot in my future. 아래열 익도 진 char. Char reason. Globalization. This is not just for India. I believe that studying in other countries is really good. The world is being globalized. Countries are connected to each other. If I want to contact my Indian friend, I can just call them in 1 minute. Not even 1 minute, in each second. If I want to meet my Indian friend, I can go there simply in 4 hours through airplane. The whole world is connected, so we have to know the world. We have to experience other culture, other people, other lifestyle like this. If we are reluctant to experience other country, we cannot be successful in globalized world. GK?
Anyways, these are the 4 reasons why students must go to India and study. And they are why I studied in India for 5 years. I want India to develop faster because I love India so much. And if India develops faster, it will get some more benefit for me. And there are many other reasons why we have to visit India, like tasty food, tourist attractions. Arey yaar, I miss Indian food so much. I stopped eating gulab jamun for like 1 month. I'm on diet. Arey yaar, I just want to stop dieting and eat 10 gulab jamuns. Anyways, I lost 4 kg already. Anyways, that's all for my today's video. Is there anyone who wants to study in Korea? Tell me why. If you really want to study in Korea and actually come to Korea by like some exchange student, I will become your friend. I promise you. Anyways, thank you so much for watching my today's video and please like and subscribe my channel if you liked it. Okay? I'll be there. See you on Tuesday. बात करें अगर आज इस वीडियो की तो नो डाउट है एक जो है ना डाइवर्स कल्चर में जाकर पढ़ना आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। और जैसे हमने बहुत सारी वीडियो में बात की हुई है कि इंडिया में तो वैसे ही कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और तुम्हें पता है मैं जब ये वीडियो देख रही थी और जो पहला पॉइंट आया था ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, तो मेरे ज़हन में 2 बातें आई थी। एक थी कि इंडिया को शुरू से विश्व गुरु माना जाता है। हाँ। और अगर आज के टाइम पर भी आप देखो तो आपको ये चीज नजर आती है, डाइवर्सिटी नजर आती है। और दूसरी मेरे जहन में जो चीज आ रही थी और वो ये आ रहा था, यानी कि जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन वाली बात पॉइंट उन्होंने बोला तो वसुदेव कुटुंबकम मेरे जहन में आ रहा था, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। और वाकई में ये चीज हम लोगों को इंडिया में देखने को नजर आती है कि आपको हर रंग के लोग वहां पर नजर आएंगे। और मैं बिल्कुल उनकी बात से अग्री भी करूंगी। कोरियन लड़का लिखा हुआ था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था वैसे उनकी बातें सुनने का कि आप जब लोगों से मिलते हो ना तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती हैं, आप कनेक्ट होते हो। और अगर आप नहीं मिलेंगे, आप रुक जाएंगे, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्योंकि आप कुएं के मेंढक रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं। देखें जब क्या नाम लेते हैं 2 लोग एक ही जगह पे बैठे रहेंगे ना और वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो वो जो है फासले हमेशा बढ़ेंगे, आपके जो है प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन इंडिया की मैं बात करूं तो नो डाउट इंडिया में इस टाइम की अगर बात की तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो देखने को मिलता है। हर बंदा जो है वो इंडिया जाकर कारोबार करना शुरू करना चाहता है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, एक मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा बड़ी है। और उसके अलावा आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, आपको एक तरह की उसमें सिक्योरिटी भी है कि भाई मेरा कारोबार यहाँ पर चलेगा। अच्छा, वैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर बात करें तो नो डाउट उसमें तो कोई आप डाउट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोग को नजर भी आता है चीजें। और अगर आप डिफरेंट कंट्रीज देख लें, यानी कि अमेरिका देख लें, यूके देख लें, यूएई देख लें, आपको जितने भी मतलब अच्छी पोजीशंस हैं उन सब पर आपको इंडियंस ही नजर आएंगे। और वो क्यों है? बिल्कुल इस वजह से क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो अच्छा पड़ गया है। इवन के सीईओ जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके भी आपको इंडियंस ही बिल्कुल। जैसे बीच में नासा की भी एग्जांपल दी जो है कोरियन लड़के ने, और उसने ये भी कहा कि ऐसे एरे को उठा के तो नहीं ना बैठा देंगे भाई, लागत है जो बहुत स्किल्ड और जो यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा उसे ही वो जो है अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, आपको जो है बहुत सारे मुल्कों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है इंडियंस देखने को मिलते हैं और वहां पर जो है एक अच्छा खासा स्टेटस उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और मैं एक और बात यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने जो बात की है ना उसकी के सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया की आप कोस्ट लाइन देखें ना, इंडिया के एक साइड पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। मैं वीडियो देखते देखते जैसे उन्होंने लॉजिस्टिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक चीज आई कि देखें जैसे फॉर एग्जांपल अरब से या सेंट्रल एशिया से कोई चीज जाएगी तो उसे पूरा जो है अरेबियन सी से होके बे ऑफ बंगाल से होके आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया क्योंकि दोनों साइड को टच करता है, तो अगर आपकी लॉजिस्टिक आपने अगर बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे कहीं पर भेजनी है ये तो आप वहां पर जो आपकी पोर्ट है आप वहां पर भेज दें। अगर आपने अरेबियन सी वाली साइड पे कहीं
बेचनी है आप वहां पर भेज दें, तो आपको ये भी आप बहुत मिड में एज, हाँ आते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा एज रहता है इस लिहाज से कि आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा वो मतलब कॉस्ट कि कट हो जाती है। geographically जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर बिल्कुल है अगर हम लोग लॉजिस्टिक्स की बात बिल्कुल। करें तो। लेकिन उसके साथ साथ पोटेंशियल की भी हम बात करना चाहेंगे। पोटेंशियल के लिहाज से भी मेरे ख्याल में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल हम लोग को आपको तभी नजर आ रहा था जब बहुत सारी जगहों पर आपको इंडियंस नजर आते हैं काम बिल्कुल, करते हुए। तो हकीकत मुझे लगता है। है कि वाकई में बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में इवन के पहले भी 10-15 साल पहले भी हम लोग बात कर ले, जो कि एक हम कहेंगे आने वाले हालात के बारे में अच्छी सेंस रखते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि उन लोगों ने तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया गया था। फिर मेरे जहन में मौसम के सर वाली बात आ जाती है। मैं भी सोच ही रहा था, मैं कहा मानती के ज़हन में ना ये बात जरूर फिर आ रही हाँ, होगी। लेकिन देखो एक दो लोग इस बारे में बात नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया के ब्राइट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि इंडिया जो है वो मतलब आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो मुझे लगता है कि मतलब सब लोग जो है ना, उनको जो वो लोग जो ये चीजें नहीं मानते और उनको ये लगता है कि नहीं इस तरीके से बातें बस की जाती हैं, मुझे लगता है उनको ना रियलिटी मतलब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको फॉलो करनी चाहिए अच्छी चीजें देख के कि कहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हमारे लूप होल्स हैं और कहाँ पर इंडिया जो है वो अच्छे तरीके से उन चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि ये बाकी कंट्रीज को करना चाहिए। यार देखें, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना तो पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि किसी मुल्क में एक पॉलिसी जो है वो चल रही है, तो अगर देखें कि अगर वो पॉलिसी आपको भी कहीं पे बेनिफिट दे सकती है तो आपको उसे अडॉप्ट करने में कोई वो झिझक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें आपने जो है सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। बाकी तनकीद की बात करें तो वो तो आप अच्छा करें या बुरा करें, लोग आप पे तनकीद करने पे कभी बाज नहीं आते। बट आई थिंक मौसम आपको ना वो कहते हैं नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। नकल वो वाली करनी चाहिए आपको अपनी, मुझे लगता है कि हैसियत के मुताबिक काम करनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि अगर अगला बंदा जो है ना वो बड़ी छलांग मारा ना और हमारे वसाइल उतनी नहीं तो हम भी उतनी छलांग मार दे। अभी कुछ दिन पहले मैं और मौसम हम लोग बाहर गए थे तो वहां पर हम लोगों ने एक देखा था मौसम जो मतलब खाना खिलाने के लिए हाँ, क्या बोलते हैं वैसे यहाँ पे लंगर खाना कहा जाता है। हाँ, लेकिन मतलब आम भाषा में क्या बोलेंगे उसको? लंगर खाना ही कहा जाता है। अरे बाबा नहीं, मतलब बाकी लोगों को समझाने के लिए हम क्या बोलेंगे? लंगर खाना ही कहा जाता है। ओके, जहाँ पर खाना खिलाया जाता है लोगों आपने को। अक्सर सुना है गुरु का लंगर। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी, बाबा जी का लंगर। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल उसी तरह की जगह बनाई हुई और मतलब वो काफी अच्छी बनाया, एक टीन में था लेकिन उसको ग्लास लगा के बड़ा उसको ना फैंसी सा बनाया हुआ था। तो मैं और मौसम ये बात करते कि अच्छी जगह है कि मतलब अच्छी बात है कि खाने के लिए लोगों के लिए एक साफ सुथरी जगह बनाई है, लेकिन उसको इतना फैंसी करने की जरूरत नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि आपको खाना खिलाना, आप सिंप्लिसिटी से भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे वसाइल इतने ज्यादा नहीं है, हमें और किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हम लोगों को रेवेन्यू। यार अव्वल तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की जगहें जो है नो डाउट हर जगह होती हैं, लेकिन पता है क्या, आपको जो है ना इस तरह की जगहों पे जो है ना इन्वेस्ट करने की बजाय आपको जो है ना ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर लोग जाके मेहनत करें, कमाएं, उन्हें पैसे मिले। क्योंकि अक्सर औकात जो होता है ना, लोग जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है खाना ही खाना है ना, वहां जाके खा लेंगे। लोगों को इसे जो है ना एक तरह की हड हरामी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, हाँ जो लोग डिजर्विंग हैं उनकी जरूर हेल्प करनी चाहिए, लेकिन क्या नाम लेते हैं जो लोग ऐसे हैं जिन्हें हड हरामी की आदत पड़ी हुई है ना, उनके लिए जो है ना गवर्नमेंट को कुछ और प्लान्स भी सोचने चाहिए। मेरा पॉइंट है, मैं नेक्स्ट यही बात बोलने लगी थी जो मौजम ने बात बोल दी कि मतलब ऐसे अदारे बनाने चाहिए, आप वहां पर मतलब पैसा खर्च करें, लोगों को जॉब्स दें और फिर ठीक है साथ में आप उसके अगर आपने कुछ एडिशनल करना है उनके लिए, आप उनके लिए खाना दे दें तो आके मतलब काम करते हुए बेनिफिट्स दे दें थोड़े, हाँ उनको मिलती रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी एफर्ट करनी चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं जितनी भी वीडियोस और जो भी हम लोग सिचुएशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वाकई में पूरी दुनिया में ये चीज एक बिल्कुल पाई जाती है और लोगों में ये समझ आई है कि इंडिया आने वाले टाइम में काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। और हम लोग बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स को भी देखते हैं जो कि इंडिया में आकर पढ़ते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी काफी सारे ब्लॉगर्स के जो है हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं। हम लोगों ने कोही की वीडियो देखी है और हम लोगों ने मायो की वीडियो देखी है, फिर लंदन की लाली, हाँ लंदन की लाली की वीडियो देखी है। तो मुझे लगता है कि वाकई में जहां पर पोटेंशियल होता है वहां पर ही लोग आते हैं। तो
बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं, और बाकी आप जरूर बताइएगा फूड वगैरह का, कल्चर वगैरह का, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं और लोगों को कनेक्ट करती हैं। तो हम लोग इसीलिए आना चाहते हैं ताकि हम लोग को और अट्रैक्ट और कनेक्ट भी हो। देखें अभी कब मौका मिलता है, दुआ करें कि जल्दी हालात जो है वो नॉर्मल हो, बिल्कुल चीजें बेहतर होंगी और डेफिनेटली आम लोगों के लिए जो आने जाने का एक जरिया है वो थोड़ा आसान हो सकेगा। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमें इजाजत। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।